but different mass number is called as the isotope. You all can note it down. Isotopes are those which contain same atomic number but different mass number. Okay, so this is what is called as the isotope. अगर मुझे सिंपल लैंग्वेज में तुम लोगों को बताना है कि आइसोटोप होता क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सी इन अ नेचर, इन आवर नेचर, one element can exist in a different kinds of masses. For example, hydrogen. Take the example of hydrogen. हमको क्या पता है हाइड्रोजन का मास क्या है? 1 is the mass of a hydrogen. But let me tell you, नेचर में ऐसे दो और तरह के हाइड्रोजन हैं जिसका मास 2 भी है और 3 भी है, राइट? सो H11, H12 and H13. Now you will ask me the question, what is this one? This one represents the atomic number. See, same atomic number but different mass number. Did you understand now? समझ में आ गया क्या बच्चों? Atomic number हाइड्रोजन का क्या है? 1, 1 and 1. That means same atomic number but different mass number. अभी जस्ट मैंने दिखाया था ना कि हम लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. हम लोग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं और मास नंबर ऊपर लिखते हैं. ओके, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल Z एंड मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल V. देखो वैसा ही रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे किया है, राइट? उसी तरह से हाइड्रोजन के जैसा कार्बन भी एग्जिस्ट करता है 3 आइसोटोप में, C612, C613, C614. देखो कार्बन 12, कार्बन 13 and कार्बन 14. That means carbon is also existing in the 3 isotopes. Again, same atomic number but different mass number. This is what is called as the isotope. सबको समझ में आ गया क्या? Did you all understand? Okay, so you can note it down the example also 1 and 2. I will give you few more examples. But अभी सिर्फ समझ लो कि these are the examples of isotopes. Okay, now here comes the question of average atomic mass. अभी आइसोटोप तो सबको समझ में आ गया. Then question comes, what is average atomic mass? अभी बता सकते हो कि average atomic mass क्या होगा? Can anyone tell me what is average atomic mass now? See, I don't want you people to be quiet only. It should be, interactive. You people should be speaking when I ask you the question. Yes, can anyone tell me? See, how many masses are there for hydrogen? 3 masses are there. How many masses are there for carbon? 3 masses are there. Which one to consider? Which one to consider? Whether 12, whether 13 or whether 14? In that case, we take a average atomic mass. समझ में आ गया? तो इन तीनों को क्या लेंगे हम लोग? एवरेज लेंगे. उसके लिए एक फॉर्मूला है. कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास? यू कैन नोट डाउन द फॉर्मूला. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. नोट डाउन. एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हाइड्रोजन के लिए लेना है, I am taking the example of a hydrogen, so accordingly I am going to build the formula. Are you understanding? हाइड्रोजन को रेफरेंस लेके, इस हाइड्रोजन को रेफरेंस लेके मैं यहाँ पे फॉर्मूला बिल्ड करूंगा. ओके, सो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन 1 इनटू atomic mass of hydrogen 1
Next, plus percentage abundance of hydrogen 2 into atomic mass of hydrogen 2 plus percentage abundance of hydrogen 3 into atomic mass of hydrogen 3. Okay. Divided by 100. Okay. Divided by 100. So this is the formula we are going to use. So what is it? नहीं 5 मिनट छोड़ता हूँ. Did you all understand the formula? किसको किसको समझ में आ गया formula? Formula is very simple. Okay. See, again I am writing here hydrogen 1 1, hydrogen 1 2, and hydrogen 1 3. Now here comes the question: what is percentage abundance? See, percentage abundance means availability of the element in the nature. यानी कि अगर हाइड्रोजन नेचर में प्रेजेंट है, you all know that the hydrogen is already present in the nature, but how much percentage of hydrogen is present? How much percentage of hydrogen containing mass 1 is present? How much percentage of hydrogen containing mass 2 is present? And how much percentage of hydrogen containing mass 3 is present? Are you understanding? यानी कि अगर मुझे एक सिंपल एग्जांपल में बोलना है तो हाइड्रोजन विच इज एग्जिस्टिंग इन अ नेचर इन अ 3 isotopes, let's say that hydrogen 1 is present 80%, hydrogen 2 is present 10%, hydrogen 3 is present 10%. Are you understanding, my dear students? That is called as the availability in the nature. यानी कि ये कितना अवेलेबल है? हाइड्रोजन कंटेनिंग मास 1 is almost 80% in the nature. Then hydrogen 2 will be 10%, hydrogen 3 will be 10%. See, these are not the actual percentages. In your book, the actual percentages are given. You can see. Okay? तो ये यहाँ पे हमको पुट करके एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1. हाइड्रोजन 1 का एटॉमिक मास क्या है? 1. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 2 2. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 3 3. डिवाइड कर दो 100 से, यू विल गेट द एवरेज एटॉमिक मास. तो समझ में आ गया? एवरेज एटॉमिक मास हम लोग क्यों यूज करते हैं? व्हाई डू वी यूज? वी यूज ओनली इन द केस ऑफ आइसोटोप्स. किसके केस में यूज करेंगे? आइसोटोप्स के केस में यूज करेंगे. आई होप दैट दिस इज very much clear to all of you. Then one more point is there which is to be discussed, that is the formula mass. What is formula mass? See, formula mass is applicable to only formula. For example, NaCl. NaCl, now you will ask me, sir, NaCl is a compound. Generally ऐसा ही सुना है ना तुम लोगों ने कि NaCl is a compound, NaCl is a molecule, but let me tell you, NaCl is also called as the formula. Why it is called as the formula? देखो फॉर्मूला कंपाउंड मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है? कंपाउंड और मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है. फॉर एग्जांपल HCl और क्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड है. कौन सा बॉन्ड है? देयर इज अ कोवैलेंट बॉन्ड. सो एक्चुअली द बॉन्ड इज प्रेजेंट. यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये एक्चुअल में बॉन्ड बनाया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय डियर स्टूडेंट्स? दे हैव एक्चुअली मेड द बॉन्ड्स, बट हियर इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग? Sodium is giving the electron to chlorine and chlorine is accepting the electron.
देयर इज नो एनी काइंड ऑफ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। तो है क्या इसके बीच में? इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Am I right? It is an ionic compound, बराबर है ना? आयोनिक कंपाउंड है। एक क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, बट वो एक्चुअल में बॉन्ड बना रहे क्या? वो बॉन्ड नहीं बना रहे, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहे। तो यहां पे बॉन्ड हुआ है क्या? इसके केस में देयर इज एब्सोल्युटली नो बॉन्ड, देयर इज ओनली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स। सो इन दिस केस इट विल बी कंसिडर्ड एज द फॉर्मूला मास। समझ में आ गया बच्चों? फॉर्मूला मास किसको बोलते हैं हम लोग? तो यहां पे सोडियम का मास अलग से कैलकुलेट होगा और क्लोरीन का मास अलग से कैलकुलेट होगा, एंड कंबाइनिंग दिस टू इट विल बी कॉल्ड एज द फॉर्मूला मास। क्योंकि अब ये फॉर्मूला हो गया ना, क्योंकि सोडियम को हमने क्लोरीन से जोड़ दिया, इट बिकम्स अ फॉर्मूला। बट हियर देयर इज एक्चुअली अ बॉन्ड, हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, इससे सेपरेट नहीं है, यहाँ पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे क्लियर कट बॉन्ड है। दोनों भी कंपाउंड हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके शेयर करके दे आर फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, दैट इज व्हाई इन दिस केस इट विल बी कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ गया मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास का डिफरेंस? सो आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो विल सी इन टुमारो।